Now we are going to start with practice set 2.2. In that first question they are given you as M and N, both the lines are parallel to each other, where line P is the transversal. You can see on the board also. They are given you here 3x and here they are given you as x degree. So we have to find the value of x. If you see to the diagram carefully, it makes a pair of interior angles. दोनों पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल भी है और दोनों एंगल अंदर अंदर है, तो क्या बन गए वो इंटीरियर एंगल. तो यू ऑल नो कि 3x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. 3x जो इंटीरियर एंगल्स को जब हम लोग ऐड करते हैं ना, उसका वैल्यू आता है 180 डिग्री. रीजन हम लोग सिर्फ लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स करके. Or if in your school they told you to write on the full, you can write on the full. Like measure of interior angle is 180 degree. That also you can write it down. So now 3x plus, यहाँ पे x के साथ कुछ नंबर नहीं है तो हम लोग पकड़ेंगे 1. So 3x plus 1x कितना होता है ये 4x होता है. 4x is equal to 180 degree. Therefore x is equal to, अब यहाँ पे 4 multiply by x है और मेरे को 4 है ना नंबर के साथ चाहिए, तो क्या होएगा, जो 4 का मल्टीप्लीकेशन का ऑपोजिट होने वाला है, इक्वल टू का राइट हैंड साइड में आने के बाद, तो ऑपोजिट ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज व्हाट, इट इज डिवीजन. सो 180 डिवाइडेड बाय 4, व्हाट द कॉन्सेप्ट क्लियर. 4x is equal to 180 was there. So I want the number should be there with the number only. I have seen what the sign is there here. 4 multiplied by x is there. I don't know the multiplication. When it comes on the right hand side of equal to, it becomes division. It is like this way. And when you can divide 180 by 4, you are getting the answer as 45 degree. So what the value of x as 45 degree in question number 1 of practice at 2.2. So you can select the option as C. C option आएगा. Option C it is. Correct, as 45 degree. Now we will see to the next question, second question. So in question number 2 also, they are given you line A is parallel to line B, एक दूसरे को पैरेलल है, और लाइन L है ट्रांसवर्सल. You have to find the value of x. Correct. Now if you see the diagram carefully, यहाँ पे नीचे क्या 2x है. Correct. So वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ये भी 2x होता है. गॉट द कॉन्सेप्ट क्लियर. सो ये 2x है तो उसका सामने वाला जो एंगल रहता है ना, उसका भी मेजरमेंट सेम रहता है. इट इज 2x ओनली. आई शो इट हियर. इफ द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर लाइक दिस वे, अगर दो लाइन पैरेलल है एक दूसरे को, तो क्या होता है, ये दिस एंगल मेजरमेंट इज ऑफ 40 डिग्री फॉर एग्जांपल, तो उसके सामने वाला एंगल का भी मेजरमेंट आएगा 40 डिग्री. इसको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, दे आर इक्वल टू ईच अदर. वन मोर एग्जांपल, अभी दिस एंगल इज ऑफ मेजरमेंट 140 डिग्री, तो इसके सामने वाला एंगल ये है, इसका भी वैल्यू आएगा 140 डिग्री. गॉट द कॉन्सेप्ट क्लियर. सो व्हेन वी आर हैविंग टू पैरेलल लाइंस एंड वन इज द ट्रांसवर्सल हियर, ऑन one parallel lines, if the transversal is done, so opposite angles are equal to each other. It is like this way. So here also 2x will be equal to 2x here. Now again if you see the diagram carefully, here 2x और 4x और 2x दोनों पैरेलल लाइन के अंदर अंदर है, 4x और 2x. तो ये काय का पेयर बनता है, वो इंटीरियर एंगल्स का. तो इंटीरियर एंगल्स का टोटल मेजरमेंट कितना है, इट इज 180 डिग्री. रीजन लिखेंगे हम लोग इंटीरियर एंगल. Therefore 2x plus 4x plus 2x is 6x is equal to 180 degree. Therefore x is equal to, again यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई है, इक्वल टू का राइट हैंड साइड में आएगा तो ऑपोजिट डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन का. So 180 divided by 6, it is equal to 30 degree. So here also we got the value of x as 30 degree. And in our question number 2, it is option
D it is. Option D is your answer for question number 2. Now we will see to the next question, question number 3. So in question number 2, they are given you or practice set 2.2, P and Q are parallel to each other. Means this line P and Q, if you see the diagram, they are parallel to each other, where we are having in this diagram two transversals. First transversal is line T, second transversal is line S. So don't get confused that T and S are parallel to each other, correct? Otherwise they are given in the textbook also कि P and Q are parallel to each other. It is given to you. So if you see the diagram carefully, अगर ये दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल लाइंस है और सिर्फ हम लोग लाइन टी को ही पकड़ते हैं ट्रांसवर्सल, फिलहाल लाइन एस को बाद में हम लोग पकड़ेंगे, ट्रांसवर्सल करेंगे. अभी टी को ट्रांसवर्सल पकड़ते हैं और पी का देखो जो पैरेलल लाइन है पी एंड क्यू, ट्रांसवर्सल लाइन टी पे ऊपर एंगल दिया 40 डिग्री, तो एंगल ए का भी मेजरमेंट कितना आएगा 40 डिग्री. सो रीजन विल बी व्हाट, ऊपर वाला ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पैरेलल लाइंस, इट बिकम्स व्हाट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो राइट इट डाउन, लाइन पी पैरेलल टू लाइन क्यू, लाइन पी और क्यू दोनों को पैरेलल है, वेयर लाइन टी इज ट्रांसवर्सल. यानी अभी हम लोग क्या पकड़ रहे हैं, लाइन टी को ट्रांसवर्सल पकड़ते हैं. वी हैव टू राइट इट डाउन. तभी हमारा एंगल ए इज इक्वल टू 40 डिग्री लिख सकते हैं हम लोग. रीजन आएगा इसका करस्पॉन्डिंग एंगल. समझ में आए? इट बिकम्स व्हाट, अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स. दोनों ऊपर वाले है ना, एंगल ए और एंगल 40 जो 40 डिग्री है, both are up on the right hand side of the transversal as well as on the parallel ends also. Now we want the measure of angle x also. So if you see carefully, ये दोनों एंगल कहां पे है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, करेक्ट. और ये दोनों एंगल का मेजरमेंट कितना रहेगा, इट इज 180 डिग्री. सो वी कैन राइट डाउन एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. तो हम लोग लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. जब कभी भी स्ट्रेट लाइन में दो एंगल्स निकालते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन में दो एंगल मिल गए है ना, स्ट्रेट लाइन दो एंगल आ गया, एंगल 1 और एंगल 2 आ गया, दोनों का मिलके उसका मेजरमेंट रहता है 180 डिग्री. इट इज कंपल्सरी, करेक्ट. सो रिटर्न यहां एंगल ए प्लस एंगल एक्स बोथ आर देयर इन वन स्ट्रेट लाइन, सो इट बिकम्स व्हाट, 180 मेजरमेंट ऑफ बोथ द एंगल्स. एंगल ए का मेजरमेंट है मेरे पास 40 प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. देयरफॉर अभी मेरे को एंगल एक्स चाहिए, 40 नंबर नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, प्लस 40 है इक्वल टू का राइट हैंड साइड में डालने वाला हूं. तो जैसे राइट हैंड साइड में जाता है वो प्लस का ऑपोजिट होएगा, क्या होएगा वो, माइनस. सो एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 40 इज इक्वल टू 140 डिग्री. सो व्हाट द मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स ऑल्सो एज 140 degree. So I'm writing it down here, 140 and this one is 40. तो यहां तक तो समझ में आ ही गया रहेगा. तो मेरा टी ट्रांसवर्सल का काम हो गया खत्म. अभी हम लोग किसको पकड़ने वाले हैं, एस ट्रांसवर्सल को. तो चलो पकड़ते हैं फटाफट एस को. सेम मैनर लाइन पी पैरेलल है लाइन क्यू को, और इस बार हम लोग लेंगे line S as a transversal. Line where line S is transversal, correct? So I told you before also
एंगल y का मेजरमेंट चाहिए हमको, y का मेजरमेंट चाहिए, b का भी मेजरमेंट चाहिए। इफ यू सी द डायग्राम केयरफुली, b का मेजरमेंट 70 डिग्री होता है। रीजन, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जस्ट नाउ आई एक्सप्लेन यू इन क्वेश्चन नंबर 1 का सब पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग लिखेंगे एंगल b इज इक्वल टू 70 डिग्री, रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, करेक्ट, it is vertically opposite angle. So got the angle B as 70 degree here. Now if you see the diagram again carefully, P and Q दोनों क्या पैरेलल लाइंस हैं, S को ट्रांसवर्सल पकड़ा हम लोग ने, और Y और B देखो दोनों अंदर अंदर है, तो क्या बन गया वो इंटीरियर एंगल्स, उसका मेजरमेंट कितना रहता है 180 डिग्री। सो राइट इट डाउन, एंगल B plus angle y is equal to 180 degree, reason interior angle, or you can say like sum of interior angle is 180 degree. So angle B measurement you are having here is 70 degree, we can write it out, therefore plus angle y is equal to 180, therefore angle y is equal to 180 plus 70. When it goes on the equal side of right hand side of equal, when it go to the right hand side of equal to, it becomes what, minus 70, so it is 110. So angle y का भी मेजरमेंट आया हमारे पास 110. So like this way we got the value of a, angle a 40 degree, angle x 140 degree, angle b as 70 degree, angle y as 110 degree. So very easy sum set is. Now we'll move on to question number 3. So in question number 3, they are given you as line P और line Q एक दूसरे को पैरेलल है, वैसे ही लाइन N और लाइन M एक दूसरे को पैरेलल है, करेक्ट। हम लोग को एंगल A, एंगल B और एंगल C का वैल्यू फाइंड आउट करने का है। So what I will do here, if you see the diagram, एंगल A और ये that becomes from vertically opposite angle, so I can write here angle A, correct, both are of equal measurement, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में किए थे। तो यहाँ पे A लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे भी A में लिख सकता हूं, as well as we can do it like this way also, A plus AT is equal to how much it is, दोनों देखो पैरेलल लाइंस का अंदर अंदर है A और AT, तो क्या बन गया ये इंटीरियर एंगल्स, करेक्ट। अगर मैं P एंड Q को अगर मैं पैरेलल पकड़ता हूं और L को ही मैं सिर्फ ट्रांसवर्सल पकड़ता हूं, नीचे वाले को भूल जाओ अभी फिलहाल, L को ही मैं ट्रांसवर्सल अगर मैं पकड़ता हूं और एक दूसरे को PQ एक दूसरे को पैरेलल है, इसका मतलब ये दोनों 80 प्लस एंगल A मिलके कितना हो गया ये 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल्स दो पैरेलल लाइंस के अंदर अंदर है, करेक्ट। सो फर्स्ट आई विल राइट हियर, मिस फर्स्ट आई रिटन हियर ए और ए दोनों इक्वल है करके। अभी मैं लिखने वाला हूं P और Q पैरेलल है, राइट इट डाउन, लाइन P पैरेलल टू लाइन Q where line L is transversal. It is what? Transversal. समझ में? P और Q पैरेलल है, लाइन L ट्रांसवर्सल है, यानी नीचे वाले को भूल जाओ, ये दोनों पैरेलल है और L ट्रांसवर्सल है। तो मैं लिखूंगा एंगल A प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री, A प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन में लिखूंगा इंटीरियर एंगल। अभी A का मेजरमेंट नहीं दिया हुआ, तो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू 180 प्लस 80 इक्वल टू का राइट हैंड साइड में जाता है, तो इट बिकम्स माइनस 80। सो माइनस 80 इज इक्वल टू 100, हो गया हमारा A का वैल्यू आया 100। सो दिस इज 100, दिस वन इज ऑल्सो 100, so got the value of A as 100. Now here what we'll do, अब हम लोग क्या करेंगे पता है,
L और M को पैरेलल पकड़ेंगे और P को ट्रांसवर्सल पकड़ते हैं। समझ में आया? हम लोग क्या Q को भूल जाते हैं फिलहाल, Q को नहीं पकड़ेंगे, हम लोग पकड़ेंगे L और M पैरेलल है। P को अगर मैं ट्रांसवर्सल पकड़ता हूं तो मेरा जो C एंगल है, एंगल C इधर आएगा। रीजन क्या आएगा? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, और एंगल C विल बी इक्वल टू 80 डिग्री। रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल, ऊपर वाला एंगल, बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल इट इज। सो आई राइट इट डाउन लाइक दिस वे, लाइन L parallel to line M where line P is transversal। समझ में? Q को अभी फिलहाल भूल जाने का, लाइन L और M को पैरेलल है वो दिमाग में रख लो और P को ट्रांसवर्सल पकड़ लो। तो ये एंगल C भी इधर आएगा, एंगल C करके। तो C एंगल C का मेजरमेंट कितना आएगा? 80 डिग्री। मैं लिखूंगा देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू 80 डिग्री। वी कैन राइट इट डाउन एज करस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में? हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? करस्पॉन्डिंग एंगल करके। सो इन द you have to do the diagram also, you have to show the diagram also like this way, angle C और angle C, बाद में 80 is equal to angle C corresponding angle। अभी C का मेजरमेंट आया 80, तो ये भी C का मेजरमेंट आया 80, करेक्ट है। उसके बाद क्या करेंगे पता है? अभी हम लोग वापिस हम लोग P और Q को हम लोग ट्रांसवर्सल पकड़ेंगे और L को भूल जाएंगे, M को हम लोग ट्रांसवर्सल पकड़ते हैं। गॉट द कॉन्सेप्ट क्लियर? P and Q they are parallel to each other, और M अगर ट्रांसवर्सल है तो ये 80 डिग्री है, C का मेजरमेंट 80 डिग्री है, तो B का भी मेजरमेंट 80 डिग्री है। रीजन देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल, ऊपर वाला एंगल और इधर से भी ऊपर वाला एंगल। समझ में? सो कैन डू इट लाइक दिस वे कि देयरफॉर एंगल हम लोग पहले लिखेंगे, लाइन कौन किसको पैरेलल है? line P is parallel to line Q where we can write it down, line M is transversal। M को हम लोग ट्रांसवर्सल पकड़ते हैं, तो फिर मेरा एंगल B is equal to 80 डिग्री। रीजन यू कैन राइट इट डाउन, करस्पॉन्डिंग एंगल, करेक्ट। सो माय एंगल B का भी मेजरमेंट कितना आया? इट इज 80 डिग्री। सो इट वॉज बेस्ड ऑन इंटीरियर एंगल, इट वॉज बेस्ड ऑन करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एज वेल एज लास्ट पार्ट ऑल्सो इट वॉज बेस्ड ऑन करस्पॉन्डिंग एंगल्स ओनली। सो लाइक दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर क्वेश्चन नंबर 3। You have to do 2 or 3 times practice of it, then it is very easy to understand also. Now we will see to the next question, question number 4.